دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,12,000 کیوسک تک جا پہنچا ہے۔ دریائے راوی جسٹی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 73,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,14,000 کیوسک ہو گیا۔ بلوگی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,44,000 کیوسک تک پہنچ گیا، جبکہ ہیڈ سدھنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,22,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیں گے، ہمارے ساتھ طاہر جمیل خان موجود ہیں۔ طاہر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور گزشتہ ہفتے 2,20,000 پہ جانے کے بعد پانی مسلسل کم ہو رہا تھا، لیکن اب دوبارہ سے پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز 1,00,000 کیوسک کا دوبارہ سے اس میں پانی ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اگر اب کی بات کریں تو شاہدرہ کے قریب پانی کا جو بہاؤ ہے وہ 1,12,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پی ڈی ایم اے کے مطابق راوی سائفن کے مقام پر پانی کا جو مقدار ہے وہ 1,14,000 کیوسک، جبکہ اسی طرح بھارت سے جب پانی پاکستان کی حدود میں آتا ہے جسڑ کے مقام پر وہاں پانی کا بہاؤ 73,000 کیوسک ہے۔ اس کے ساتھ اب یہ بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سے 7 روز مسلسل بارشیں ہوں گی، نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع میں بلکہ بالائی علاقوں میں بھی بارشیں ہوں گی، اور اس طرح بھارتی کی حدود میں بھی بھارتی پنجاب میں اور دوسرے اضلاع میں وہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور بھارتی ڈیم بھی بھر گیا، تو ایسی صورت میں ایک دفعہ پھر راوی کا جو پانی ہے فی الوقت تو 1,12,000 شاہدرہ میں ہے، اس کی سطح اس سے بھی بلند ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ضلع انتظامیہ بھی پوری طرح متحرک ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ متحرک ہیں، اور پہلے بھی جو لوگ بے گھر ہیں مختلف ریلیف کیمپ میں قائم ہیں ان کے لیے بھی جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ طاہر، بہت شکریہ۔ سیلاب متاثرین کو مالی امداد فراہم کرنے کا ماڈل تیار۔ پنجاب حکومت اور بینک آف پنجاب کا سیلاب متاثرین کے لیے نیا ڈسپرسمنٹ ماڈل سامنے آ گیا ہے۔ کیمپ سائٹس کے ذریعے متاثرین کو فوری اور شفاف مالی امداد دی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ علی رامی ہیں۔ علی رامی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیلاب متاثرین کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے جو پنجاب حکومت نے ماڈل تیار کیا ہے، اس ماڈل کے تحت بینک آف پنجاب جو ہے وہ سیلاب متاثرین میں فنڈ کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ کرے گا، اور اس میں کیمپ سائٹس کے ذریعے متاثرین کو فوری اور شفاف مالی امداد دی جائے گی۔ تو مستحقین کو ایس ایم ایس موصول ہونے پر اصل شناختی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ کیمپ پر پہنچنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو جو سروے کیا جائے گا اس میں شناختی کارڈ کے نمبر جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اس کے بعد ان کو ایس ایم ایس جو بھیجا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کیمپ سائٹ پر سی این آئی سی کی ویریفیکیشن اور بایو میٹرک تصدیق جو ہے وہ بھی کی جائے گی، اور حکومت پنجاب کو اس معاملے پر ریئل ٹائم ڈیش بورڈ کے ذریعے جو ہے وہ ادائیگی کی مکمل رپورٹنگ جو ہے وہ موصول ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی متاثرین کو اکثر شناختی کارڈ اور رجسٹرڈ نمبر کے ذریعے ہی امداد ملے گی۔ یہ بھی کرائیٹیریا جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بایو میٹرک تصدیق جو ہے وہ لازم ہوگی، اور کسی دوسرے شخص کو امداد وصول کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی کہ اس میں جو متاثرہ ایک خاندان ہوگا اس میں صرف ایک فرد ہی اپلائی جو ہے وہ کر سکے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ایف اے ٹی ایف ہے اور ایس او پیز اس کے تقاضوں کو مد نظر جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور شفافیت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا، اور اس میں کیمپ سائٹ پر جو سہولت ہے وہ اس کے لیے ڈیسک بھی قائم کیے جائیں گے، اور ریکارڈ اور مسائل اعتراضات پر فوری حل کرنے کے لیے سہولت جو ہے وہ بھی وہاں پر میسر ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا شاہپور کانجرہ میں قائم سیلاب ریلیف کیمپ کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن شبیر طارق بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور نے ریلیف کیمپ میں متاثرین کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا ہے۔ اے سی علامہ اقبال ٹاؤن نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ کیمپ میں متاثرین کو دن میں 3 بار پکا ہوا کھانا عزت اور احترام سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو دودھ کی فراہمی اور تعلیم کا سلسلہ بھی کیمپ میں جاری ہے۔ متاثرین کی بحالی اور گھروں کو واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے ڈی سی لاہور کی کیمپ میں مقیم شہریوں سے بات چیت اور سہولیات بارے بھی دریافت کیا گیا۔ متاثرین کا بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر لاہور اور ضلعی انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کیمپ میں قائم میڈیکل کیمپ، کلاس رومز اور رہائشی حصے کا معائنہ کیا۔ کھانے کے معیار اور صفائی کے انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مانسون بارشوں کے 10ویں اسپیل بارے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 6 سے 9 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات اور دیگر شہروں میں بارشیں متوقع ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔
दरियाए रावी, चिनाब, सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है। DGPD-MA इरफान अली काठिया का ये भी कहना है कि बड़े शहरों में मानसून बारिशों से नदी नाले बिफर सकते हैं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। DGPD-MA इरफान अली काठिया की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। बात करें मौजूदा मौसम की सूरत हाल की, तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है। शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान बताया जा रहा है। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है। मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जान लेंगे। समरा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात कर लीजिए तो मौसम सुबह से ही गर्म और हबसदा महसूस किया जा रहा है। जब आसमान पर बादल आते हैं तो हल्की फुल्की हवा जो है वो महसूस होती है, लेकिन जैसे ही सूरज फिर से जलवागर होता है तो हब्स और तपिश का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। सुबह से सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद शहर का मौसम जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा। दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 61% है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का ये जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। शाम के औकात में मौसम बेहतर होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज तो शहर लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। अलबत्ता कल से मानसून के 10वें स्पेल का आगाज होने जा रहा है, जो कि 9 सितंबर तक न सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। इसमें भी जो है वो शदीद मानसून बारिशों की पेशन गोई की जा रही है। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो दरियाओं और नहरों के अतराफ जो है वो सैर व तफरीह से खासकर गुरेज करें और गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज करें। बिजली की कमबोर तारों से दूर रहें और इंतजामिया और इदारों की जानिब से जिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का कहा जा रहा है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। हुकूमत ने 10 और 20 किलो आटे के थैले की कीमत का तयन कर दिया है। 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। लाहौर के अंदर जो आटे की सूरत हाल है वो भी ख़राबी का शिकार हो रही है, क्योंकि हुकूमत की जानब से जो कीमत आटे की मुकर्रर की गई हैं उस रेट्स पर आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मिल्स की जानब से 15 किलोग्राम का आटे का जो थैला मुतारफ़ करवाया गया है उसकी कीमत जो है वो 1600 रुपये रखी गई है। इससे तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो 20 किलोग्राम आटे का थैला था वो 16 से 1700 रुपये तक जो है वो मिल रहा था। एक महीना पीछे चले जाएं तो यही थैला तकरीबन 1300 से 1400 रुपये का था। 2 हफ्तों बाद 20 किलोग्राम थैले की कीमत 16 से 1700 रुपये तक पहुंची और उसके बाद जो 20 किलोग्राम का थैला था वो मार्केट से गायब कर दिया गया। 15 किलोग्राम का थैला मुतारफ़ कराया गया जिसकी कीमत 1600 रुपये रखी गई। और इस वक्त हुकूमत की जानब से 10 किलो और 20 किलोग्राम के आटे की कीमतें जो है वो सरकारी तौर पर तय की गई, लेकिन मार्केट के अंदर 10 और 20 किलोग्राम का जो आटे का थैला है वो दस्तयाब नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान का। शौक का कोई मोल नहीं। एक्साइज की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर 17 करोड़ 60 लाख मालियत गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस 94 लाख 41 लाख अदा कर दी गई। मजीद जान लेंगे, अली साहिद से बताइएगा। बिल्कुल, शौक का कोई मोल नहीं। शहरी विकास की जानब से आज लाहौर में गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई गई है जिसकी मालियत 17 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। रेंज रोवर ये गाड़ी है जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी एक्साइज की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 94 लाख 41 हज़ार रुपये अदा की गई है। डायरेक्टर मोटर शाहिद गिलानी का कहना है कि इससे कबल गुज़श्ता माह 91 लाख रजिस्ट्रेशन फीस अदा की गई थी और ये एक रिकॉर्ड था जिसको आज रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ी ने ब्रेक किया है। गुजरावाला के रहायशी की जानब से ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई गई जिसको WA089 नंबर अलाट किया गया है। डायरेक्टर मोटर्स का कहना है कि जितनी भी गाड़ियाँ आप खरीदें इसको फौरी तौर पर रजिस्टर्ड और ट्रांसफ़र करवाएं। उन्होंने पहले 2 माह के अंदर 5 अरब से ज़ायद का हदफ जो है वो हासिल किया है, तो DG एक्साइज की जानब से उनको 15 अरब से ज़ायद का टारगेट दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब।
रॉयड मैनेजमेंट पुलिस और पैरा में तैनात पुलिस एहलकारों की मौजें लग गईं। सीसीडी में भिजवाए गए एहलकारों को पंजाब कांस्टेबलरी भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। पैरा और आरएमपी में तैनात एहलकारों को पंजाब कांस्टेबलरी नहीं भिजवाया जाएगा। आरएमपी पैरा सीसीडी में पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ यूनिट से हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को भिजवाया गया था। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एस्टेब्लिशमेंट 2 ने मरासा जो है मुतलका अफसरान को भिजवा दिया है। मरासे में कहा गया है कि राइट मैनेजमेंट पुलिस और पीरा में तैनात पुलिस एहलकारों की मौजें लगी हैं, जबकि पीरा और आरएमपी में तैनात एहलकारों को पंजाब कांस्टेबलरी नहीं भिजवाएगा, जबकि सीसीडी में भिजवाए गए एहलकारों को पंजाब कांस्टेबलरी में भिजवाने का फैसला किया गया। मरासे में कहा गया है कि आरएमपी, पीरा और सीसीडी में पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स को भिजवाया गया था। अलबत्ता नई यूनिट्स में तैनाती बारे जिले सरबराहान की जानिब से एहलकारों के तबादले मुतालिक रहनुमाई मांगी गई। राजी पंजाब के हुक्म पर पीरा और आरएमपी में तैनाती के दौरान मज़कूरा एहलकारों के तबादले पंजाब कांस्टेबलरी में नहीं होंगे। अलबत्ता क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनात एहलकारों के तबादले उनकी बारी आने पर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। वज़ीर ऑफिस आईजी जेल के तबादलों के अहकामात पर अमल ना करना मामूल बना लिया गया है। तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले जेल अफसरान और एहलकारों की शामत आ गई। इस हवाले से मरासला भी जारी किया गया है। क्या मतन है, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात में अफसरान व एहलकारों के तबादले होते हैं तो उस पर मनोअन अमल दरामद नहीं किया जाता, जिस पर वज़ीर ऑफिस की जानब से नोटिस लिया गया है और आईजी जेल खाना जात की जानब से डायरेक्शंस जारी की गई है तमाम सुपरिटेंडेंट्स को कि अगर किसी एहलकार या अफसर का तबादला होता है तो फौरी तौर पर उसको अपनी जेल में रिपोर्ट करवाया जाए और उस पर ड्यूटी ली जाए। चूँकि बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जैसे ही एहलकार या अफसर का तबादला होता है तो सुपरिटेंडेंट पिछले जेल से फारगी रिपोर्ट के आर्डर लाने के बहाने डिले करते हैं। इस चीज़ को किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। जो भी एहलकार ट्रांसफ़र होगा उसी दिन वो अगली जेल में जाकर रिपोर्ट करेगा और अपनी सर्विस बुक भी लेकर जाएगा। इस जेल ने कहा है कि जो अफसरान व एहलकार इस पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ पीदा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को और डीआईजी को मरासला जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। लेस्को में मीटर्स बहरान पैदा होना शुरू हो चुका है। कंपनी के पास AMI स्मार्ट LTT OU मीटर्स खत्म हो चुके हैं, जराए का ये बताना है। लेस्को बड़ी कमर्शियल और सनती सारिफिन को LTE स्मार्ट मीटर्स फराहम करती है। LTE स्मार्ट मीटर्स खत्म होने से सोलर समेत न्यू कनेक्शन का अमल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। खराब होने वाले टाइम ऑफ यूज मीटर्स को भी तब्दील करने का अमल रोक दिया गया। मुख्तलिफ दफातर से जमा होने वाले मटीरियल रिलीज पर एलोकेशन नहीं की जा रही। लेस्को के पास 3 फेज मीटर्स का स्टॉक भी खत्म हो गया है। सराय के मुताबिक ये बताया गया कि कंपनी में सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक भी खत्म होने के करीब पहुंच गया। लेस्को ने खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का काम रोक दिया है। कंपनी के पास सिर्फ MMI स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक मौजूद है। लेस्को में मीटर्स बहरान पैदा होना शुरू हो गया है। कंपनी के पास AMI स्मार्ट LTT OU मीटर्स खत्म हो गए हैं। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, लेस्को मीटर्स बहरान पैदा होना शुरू हो चुका है। कंपनी के पास AMI स्मार्ट LTT OU मीटर्स खत्म हो चुके हैं।